Good morning. In last lecture, we studied the group activity, the basics first chapter. Okay. Today we are studying the second module. The next module is next concept, introduction. The organizational power and politics. The power has been described as the last directly work is in the essential work. Hmm? That is then the talk about the power. And which one power? In short, in last line is the power refers to the capacity that A has been influenced the behavior of B so that B act in accordance with A's wishes. म्हणजे ज्याची पॉवर असणार आहे त्या पॉवर प्रमाणे ते लोक चालणार आहेत. म्हणजे इन शॉर्ट ए ची पॉवर अगर जर जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू द बी, द पॉवर इज हायर देन बी, देन बी किती हुशार असो, किती वेल एजुकेटेड असो, कितीही पावरेबल हो, कितना ही वो अच्छा लिखा पढ़ा रहे, कुछ भी रहे, उससे एक ही हिसाब से ही एक्ट करने पड़ने वाला है. ऑन दिस बेसिस कि वो कैसे एक्ट करेगा, क्यों एक्ट करेगा और क्या रीजंस है, ऑन दिस बेसिस द टुडेज टॉपिक आर स्टार्टेड. द बेसिस सोर्स of type of powers. There are two general bases of source, the power of form, and this source are formal and personal. Informal, coercive, reward, legating, and past personal, expected and reference. In briefly, we are studying formal power. The formal power is based on the classification of authority of an individual in an organization. It can be further be classified as coercive power, reward power, and legislative power. The first is coercive power. And under this coercive power is defined is the benefit being depending on fair. कशावर आहे? खरेपणावर. Won't react to this power act on fair of the negative result that might occurs in fail to company. ह्याच्यामध्ये क्या होणार कंपनी? It has the organization leave to A has been Corvus power of B if A can dismiss, suspend, and demoted B, as may assume that B value his or her job. Look here, एक क्या बोला हुआ है इसके अंदर कि सिंपल है कि कंसेप्ट जो है वो करेंसी पावर जो है वो फेयर पे होती है, जो सही बात है उसके ऊपर होने वाली है, और उन फेयर बातों में अगर कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है ऑन दिस कैलकुलेशन, अगर उस इफेक्ट का कोई पिकअप नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे उन फेयर वैल्यूएबल को डिसमोड किया जाता है या डिमोड किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, और उसकी जगह पे जो अदर पर्सन जो उसका असिस्टेंट होता है उसको उस जगह पे रखा जाता है. ऑन दिस बेसिस के जिसे जो काम दिया गया है ऑन दिस ग्रुप, if the person is not work well, then the promotion and demotion is there, and these are the coerce power, and the power are generated by higher person. Okay, then the second is reward power. अब इसमें reward दिए जाते हैं. It means कि तुम्हारे वर्क के हिसाब से तुम्हें पॉइंट अप किया जाता है. The power of opportunity to cover up power. People comply with the wishes of directive of authority another, because of doing so it product positive benefit. Positive benefit, it means point. तुम्हें एक अच्छे पॉइंट दिए जाते हैं. इट मीन्स लाइक यू स्टूडेंट ग्रुप, तो तुम्हारे पॉइंट अप किया जाता है कि यू आर वेल मार्किंग एंड ऑल, और देन फ्रॉम द वेल मार्किंग यू आर ट्रांसफर टू द हायर क्लास, और इफ यू आर स्टे इन सेम क्लास, and then higher class you are marking like this with your behavior and all. Or who are the candidate distribution reward, that the other view of valuable in the power of that. There are the reward can be anything that another person value. It is an organization context within the money, any other, and that. In favor of perform is performing the friendly colleges, colleagues and etc. ओके, ह्याच्यामध्ये काय असतं तर सिंपल, इसमें क्या होता है सिंपल प्रमोशन किए जाते हैं. कौन कौन से प्रमोशन किए जाते हैं? तुम्हें प्रमोट किया जाएगा, तुम्हारी वैल्यूज की जाएंगी, तुम्हारे काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, बिकॉज यू डन द वर्क मोर एंड मैक्सिमाइज टाइम, and this maximize time work are is positive for us. Okay, then the next point is legitimate power, also called as the potential power. It is the power of an individual because of relative position and duty of the holder and position within the organization. Legitimate power is the formal
authority delighted to the holding the position. This is the most obvious and also the most important kind of power. Position of authority include coercive and reward power. अब इसके अंदर कौन सा पावर बोला हुआ है? ऐसा बंदे की पावर जो उस ग्रुप को या उस टाइप ऑफ ग्रुप को नंबर ऑफ टाइम होल्ड कर चुका है, तो उसके पास उसके ऊपर लेक ऑफ पावर, ही इज नॉट द लेक ऑफ पावर टू टेक अ डिसीजन, या उसके पावर लेने की जो पावर डिसीजन लेने की जो क्यूरियोसिटी है, जब मैम पॉसिबिलिटी है, वो हायर है देन अदर मेंबर ऑफ बिकम टू अदर पावर पर्सन. अब पावर में क्या बोला हुआ है कि इन शॉर्ट लीडर पर्सन, कि किसे पावर दी जाए कि वो सबके साइड से अथॉरिटी ली जाए. अब इधर अगर हम ऐसा बंदा सिलेक्ट करें जिसे उस टाइम के काम करने का मैक्सिमम एक्सपीरियंस है, ही इज द मैक्सिमम रिवॉर्ड एंड वर्क लाइक दिस, देन द पावर ऑफ द वर्क इज वेल डिफाइंड फॉलो. ओके, क्योंकि उसको पता रहता है कि ऑन विच सिचुएशन विच वन डिसीजन इज बेस्ट फॉर सॉल्यूशन. ओके, देन पर्सनल पावर, खुद की जो. Then, unlike formal power, is a personal power comes from the individual unique characteristics. Personal power can be further divided into the two types. That is expert power and refers to the expected power. The expert power, it is an influence the result of expensive special skill or knowledge skill. Expert has become one of the most powerful source of influence that the world has become more or which is the expert training qualified when you have the knowledge. अब इसमें क्या होता है, तो एक्सपर्ट पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है. किसकी पावर लेने वाले? एक पर्सन जो एक्सपर्ट है ऑन हिज वर्क. अब विच वन वर्क? द ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, इन्फ्लुएंस द रिजल्ट, एक्सपर्टीज, स्पेशल स्किल, उसके स्किल्स रहते हैं, उसका नॉलेज रहता है. लाइक यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, देन विच आर द स्किल? यू आर द वेल मैनेज पर्सन, then you are a well verified person, you well knowledge person, you know the how can you manage, how to reduce scrap, how to calculate the optimum resources and how to use these optimum resources, you know well power. And this is your specialty, and this specialty is your knowledge, and this knowledge is you make the greater than other student like BCom student, science student, because you are a management student and you also manage all these students because your specialty is done from you. Okay, then reference power. The reference powers is the ability to convince sensing the personality, personal expectations of approval. It is held by the people with charisma, intelligence, and positive qualification. It is most valuable type of power, refers to the power development of administrator and other and desire to be liked. As per the part of the formal role of in the organization, but that influence the attempt of influencing the distribution of advantage, disadvantage within the organizational work. All organizations subject to conflict the competitive between the desire and interesting difference in department terms and individual organizational politics refers to the process of through which is three revival interest. हाँ, प्रीफर पावर किससे होती है? जो रिफर की जाती है, यहाँ पॉलिटिकल वर्क्स होता है. इट मीन्स किसी से आइडिया लेना. अब जब आइडिया प्रोवाइड की जाती है तो तुम्हारे कुछ थॉट्स तुमसे लिए जाते हैं, तुम्हारे कुछ वैल्यूज तुमसे क्या कैचअप किए जाते हैं. जैसे तुम्हारी इंटीग्रिटी क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम्हें क्या प्रेजेंट करना है, एंड दिस इज ऑल्सो यूज टू द ब्रेक यूर ऑल्सो ग्रो. यानी उस वक्त तुम्हें एडवाइस किया जाएगा कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, but in back of that also make the name another policy to crack yourself. Are you getting my point? दो बातें होती है, एक तो तुम्हें कैसे हैंडल करना ये सिखाया जाता है, उसके बाद पीछे ही तुम्हारे जो वीक पॉइंट है उसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है. उस वीक पॉइंट से तुम्हें उस केबल से पॉलिटिक्स लड़के ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स करके हटाया भी जाता है. इसलिए किसी से हेल्प लेने से अच्छा है कि खुद के डिसीजन भी फॉलो किया जाए. ओके, ये इन शॉर्ट पॉलिटिक्स या बोला जाता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिक्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट इज अटैकिंग और ब्लेमिंग अदर्स. ये सिंपल पॉलिटिक्स है, ये सबको पता है कि किसी और के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाना. क्या बोला हुआ है उसने? अटैकिंग एंड ब्लेमिंग टू अदर. In perhaps the cat
cheapest and form of organization politics, attacking the blaming other in the eyes of the decision makers. सबको ब्लेम करते रहना टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्यों ब्लेम करना? कि जो बोल रहा है वो अगर अपने से हेड का फेवरेट है, पसंदीदा है, तो वो बोलेगा, उसको पता है, उसका सुना जाता है, और अगर उसके तरीके से चल रहा है तो उसका प्रमोशन इज डन। दिस कैन हार्म टू इमेज एंड वैक्सटीम टू damage the intention of something beyond the control of the person. Then the second is selective distribution of information. Sometimes the limits of powers is performing the revival of people, reliable, heartable, the information, knowledge is power. Obviously, people do not deserve the share to the knowledge with other and get there to perform effective. Selection the distribution of इंफॉर्मेशन। अब ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये पता होना चाहिए। तो ये सिंपल तुम में होता है, स्टूडेंट लेवल में ज्यादा होता है। जो फर्स्ट आता है उसको डर रहता है कि अगर मैंने किसी अदर स्टूडेंट को थोड़ा सा सम दिखा दिया इन मैथमेटिक्स एंड उस सम अगर पेपर में आ गया, दिस प्रॉब्लम इज आल्सो कंडक्टिंग एन एग्जाम एंड ही डन वेल, देन ही बिकम द फर्स्ट लाइक मी। वो मुझी तरह फर्स्ट आ सकता है, मेरी पोजीशन जा सकती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने कितना ही क्लोज फ्रेंड रहे एग्जाम के टाइम पर उसको इग्नोर करते हैं, राइट। एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ग्रुप। क्या होता है उसके अंदर, हम अपनी नॉलेज अपने ग्रुप मेंबर को स्प्रेड नहीं करते, और स्प्रेड नहीं होती है तो वो नॉलेज का यूज नहीं होता है और वेल डेवलप फॉर्म नहीं होता है। देन कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन चैनल्स। इंफॉर्मेशन चैनल्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करना। ओके, द पावर द इनबैंस द एग्जीक्यूटिव द नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन चैनल्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मे बी कंट्रोल इंफॉर्मेशन चैनल। लाइक देखो, चैनल जो रहता है लोअर से हायर की तरफ रहता है, मैनेजमेंट स्किल द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ये जब मैनेजमेंट चल रहा होता है इन टॉप टू लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में, जब ये वर्क हो रहा है तो जो कन्वर्सेशन होने वाला बिटवीन द थ्री लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके ऊपर जिस बंदे की कमांड रहेगी, एक एक जगह क्या हो रहा है हर एक बात सुनता रहेगा, देन ही इज कंट्रोलिंग द ऑल इंफॉर्मेशन चैनल एंड ही इज कंट्रोलिंग द योर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उसकी तरीके से बातें बना के भिजवाते रहता है टर्न करके, और उससे फिर इफेक्ट होता है ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। देन इनफॉर्मल और फॉर्मल ग्रुप्स। अब यहाँ दो ग्रुप्स बने हुए हैं, समझो। एक है फॉर्मिंग ग्रुप जो वर्क के लिए बना हुआ रहता है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल। इनफॉर्मल मैनेजमेंट, इसके अंदर कोई कहीं से भी होता है, टॉप का एक हो सकता है, लोअर का हो सकता है। इसमें ग्रुप एक्टिविटी होती है, वो ड्रंक ग्रुप हो सकता है, वो फ्रेंड्स ग्रुप हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अब इन दो ग्रुप में होने वाली जो डिसीजन मेकिंग है, दे आर डिफरेंट बट इट हाईली इफेक्टेड ऑन बोथ दैट। इनफॉर्मल में वो ड्रंक करने बैठे तो वो लोग डिसाइड करते कि कल मुझे क्या डिसीजन लेना है, और फॉर्मेलिटी में उसी डिसीजन को फॉर्मेलिटी से फॉलो किया जाता है, बट इज नॉट राइट। ओके, देन इंक्रीजिंग इन indisciplinability. Increasing in indisciplinability since the situation which are their non-suitability, increasing the sentence or the individual or unit organization and work organization. देन गेम प्लेइंग यानी गेम खेले जाते हैं। इट मीन्स तुम्हारे क्रिकेट गेम नहीं, पॉलिटिकल गेम्स प्लेइंग लाइक कि किसी एक को आगे करके काम करवा के लेना, देन बाद में उसको काम हो जाए तो उसको आउट कर देना है, नॉट। देखो, द मैनेजमेंट ऑपरेटिंग विद इन द रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, उनके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ हायर को सुना देना, देन वो बोले ये रॉन्ग है या ऐसा होता नहीं है, तो उस टाइम पे क्या कर देना, उसको रूल्स रेगुलेशन झाड़ना कि ऐसे रूल है, हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे अथॉरिटी है, तुम क्या नहीं बोल रहे हो, तुझे पता ही नहीं है, तू इस चेयर पे क्यों बैठा, एंड ऑल। इट इज गेम प्लानिंग। देन कंट्रोलिंग ऑफ एजेंडा। अब एजेंडा जो लिखा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए लास्ट ईयर है ना, उसके ऊपर ही कंट्रोल किया जाता है बाय द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। Sometimes the manager comfortable to discuss the participation importance of situation, investing the controlling during the meeting, such as issue may be the given the least importance in the agenda of may be directed the management resources, and this is not time to discuss this matter. अब एजेंडा जब जनरेट कर रहा है तो पुरानी बातें खोड़े की निकाल के उसको चेंज करना, ये मैटर करता है। देन रीजंस फॉर द कॉजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। अब क्या है रीजन? द फर्स्ट इज स्क्वायर ऑफ रिसोर्सेस।
रिसोर्स इज द मर्ज ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। रीजन टू फाइव, पहला होता है कि जो हमारे पास चीजें हैं, जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स रहे, और उसके बाद मेंबरशिप रिसोर्स रहे, उसके बाद मेंबर ऑफ पावर रहे, द नंबर ऑफ रिसोर्सेज विच इज जनरली यूजफुल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके ऊपर किसी की कमांड आ जाए कि कब कितने कहाँ बेचने हैं, तो पॉलिटिक्स जनरेट होता है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। Organization is do have to control their the resources, improve their efficiency, and can be controlling the resources as one of the way, एक way बनाया हुआ रहता है। Competitive increase the profit as few reasons, and the controlling their resources, the way are allocated secretly, scarcely, people are threatened and with losses, resources is lending thereby सफ्रिगेटेड व्हाट दे हैव। अब जब वो रिसोर्सेस अपने कॉम्पिटिटिव के पास गए, या जिसको पता है उसके पास गए, तो उसके स्टोर में जमा रहते हैं, और जब हमें लगता है तो भेजे जाते हैं। लेकिन अगर उसके बीच में अगर टाइम लैग हो जाए, तो उन टाइम लैग्स में डिसीजन मैनेजर का डाउन दिखता है, एंड दिस डाउन मैनेजमेंट इट इज जनरेटिंग पॉलिटिक्स सोर्सेस। ओके, then opportunity, limited opportunity. When the organization people aim their own to be much, an organization of the growth is lead to the good as well as the bad an organization situation where the opportunity limiting such as the limited growth is possible. अब जितनी अपॉर्चुनिटी है उस ग्रोथ होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है या अपॉर्चुनिटीज कम मिल रहे, ये भी एक पॉलिटिक्स होता है। इट मीन्स जो पॉलिटिशियन पर्सन या हायर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, वो जितना प्रोवाइड कर सकते हैं उस प्रोवाइडिंग को लेस कर देना। अब लेस करेंगे तो अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं होगी, कैश जनरेट नहीं होगी, तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो डल मैनेजमेंट दिखेगा, डल मैनेजमेंट दिखेगा, तो पॉलिटिक्स इज देयर, उस बंदे की चेयर वहां से हट सकती है। नेवर एंडिंग द चेंज, खुद में सुधार नहीं लाना, या पॉलिटिकल सिस्टम या मॉडर्न मैनेजमेंट के हिसाब से खुद को फेस नहीं करना इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। एक ओल्ड पर्सन है, उसको पेन से ही लिखना आता है, कंप्यूटर यूज करना नहीं आ रहा है, वो रजिस्टर ही जनरेट करना चाहता है। टुडे इज री इंजीनियरिंग सिस्टम बिजनेस आर कन्वर्टेड इनटू आईटी फॉर्म एंड आल्सो। और उस टाइम पे अगर वो एक्सेप्ट ना करे, तो जो न्यू रहेगा वो पॉलिटिक्स लड़के की, मुझे इतना है, मैं एडवांस हूँ, मुझे अगर ये जगह मिलेंगी तो मैं उससे ही अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा करके जो कन्वर्टेड करता है इन योर कलीग्स and voting rights to for the best management and done that. Okay, then promotion as less plantina, plantful. Hmm? Cost in the cost of the best offer the reduce the opportunity to promotion. There the result to more aggressive behavior. अब promotion को कट किया जाता है, यानी जो बंदा अपने से डेवलप होने वाला है उसके promotion को कट कर दो, रोक दो। अगर उसके promotion रुक गए, the form of work are stopped, then he also stopped there, and he also stopped there, and the होने वाला जो मैनेजमेंट है उसका जो इफेक्ट है वो इतना इफेक्टेड होगा कि जो वर्क होना चाहता था वो नहीं होगा, एंड द वर्क आर डन। उसके बाद रोल ऑफ एम्बर्गेशन, देन लैक ऑफ क्लैरिटी, प्रेशर ऑफ पावरफुल वेल, अदर देयर। then the next point we have studied here, the organizational conflicts. The conflicts क्या होते हैं, देखो organizational, the characteristic of conflicts is the first point I started there, the following of the characteristics. conflicts conflicts is just not the just appear, conflicts evaluation, वो किसी से appear नहीं होते, they are generated by your one work. Once conflicts evaluate, it is the beginning the spread like craziness. वो पागलपंती की एक हद होती है जो एम्प्लॉयज में जनरेट की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर ब्रेड बाय डिफरेंट वैल्यूज। अब वो ब्रीड किसके से, वैल्यूज की वजह से, किसी की वैल्यूज को तोड़ने की वजह से, उसको शो ऑफ करने की वजह से, उसके सामने उसको डिस्पेंसेस करने की वजह से जनरेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स इज फर्स्टेड बाय द इम्पॉर्टेबल गोल। कॉम्प्लेक्स आर इंकरेज द डिफरेंट इन पर्सनैलिटी। क्या करता है, फर्स्ट इज फ्रस्ट्रेटेड बाय इनकम्प्लीटेबल गोल। किससे होते हैं, मैक्सिमाइज जनरेट इनकम्प्लीटेबल गोल, यानी तुम्हें जो गोल दिया जाता है वो नहीं हो रहा है, तो तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती है कि इनकी पॉलिसी, इनके रूल्स रेगुलेशन आर रॉन्ग, या फिर टफ है, या जम नहीं रहे, या मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, द ग्रुप आर नॉट देयर। अंडरस्टैंडिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर फर्स्ट फॉर्म लेवल एंड टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स के थ्री टाइप्स है, देखो, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स। इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स में देखो क्या होता है, इंट्रा
intra-individual या interpersonal conflicts occurs within an individual, the expectation taking the place in the person mind. Hence, it is the types of conflicts that is psychological, involving the individual thoughts, values, principle, and emotion. Therefore, the conflicts can be in different scale, form of simple. अब इसमें क्या किया जाता है, साइकोलॉजिकल उसको हजार किया जाता है कि देख ऐसा ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, यानी जब प्रेजेंट हो रहा है उसके सामने जो व्यू है वो डिफरेंट, उसके माइंड में अलग डिफरेंट व्यू डाला जाता है, और दोनों में वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि भाई जब भी किसी से बात करता है तो ऑल टाइम वो जज करते रहता है कि जो बात बताई जा रही है वो परफेक्ट है, उसके बारे में ही सोचा जा रहा है या नहीं, एंड ऑल। देन इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। अभी इंटरपर्सनल इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो लोगों के बीच में झगड़े लगाने का काम, टू इंडिविजुअल। दिस ऑकर्स टिपिकली ड्यू टू द हाउ पीपल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। दूसरों के एक दूसरे के बारे में वो तुझसे कितना अलग है ये बताने का, और उससे फिर वो जब बात करेंगे तो वो एक दूसरे को जज करते रहते हैं, हाँ ये बोला हुआ है वैसा है क्या, ये वैसा दिख रहा है क्या, वैसा होने वाला है क्या, और उससे जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, व्यूज ऑफ टू पर्सन के बीच में जो चेंज आते हैं कि उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बोथ आर डिफरेंट। देन ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है, ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, एक बंदे को ऐसा छोड़ना जो ग्रुप की नुक्स निकालते रहे। Under intra-group conflict, this types of conflicts happens amongst individual team, within a team, the incompatible and the misunderstanding among this individual, किसके लिए, एक इनकम्प्लीटेबल पर्सन डालने का जो उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट करेगा। अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग वो एक के साथ करेगा, वो दूसरे के साथ, ऐसे पूरे ग्रुप में हो जाएंगे और हम एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ सोचते बैठेंगे, और जो ग्रुप एक्टिविटी होती है वो बाजू में रह जाएंगे। ओके, then intergroup conflict. These types of conflicts takes place when misunderstanding arise among different teams. दो डिफरेंट टीम्स में मिसअंडरस्टैंडिंग, इट मींस एचआर ग्रुप, फाइनेंस ग्रुप, इन दोनों में झगड़े लगा देना कि इधर का मैनेजर है तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, देन तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, और देन वो फिर जो व्यूज रहते हैं दोनों जब एक जगह आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे की गलतियां काउंट करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, टाइम ऑफ वर्क, लाइक बॉस के रिलेट जलाना, बॉस के रिलेटेड बात करना, देन आउट ऑफ बॉस बात करना, बॉस वांट टू मोर द प्रोडक्शन, टू एम्प्लॉय वांट टू गुड हाइक एंड देयर रिम्यूनरेशन। अब यहाँ मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, बॉस को ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और एम्प्लॉयज़ को क्या रहता है कि थोड़ा हमें रेस्ट मिले तो हम नेक्स्ट आइटम में ज़्यादा काम करें। अब दोनों के बीच में अगर हम रेस्ट करते हुए दिखे तो बॉस की थिंक क्या थी, एम्प्लॉय को ज्यादा काम करवा के लेना, और वो किसी को आराम करते देखा तो फिर उसको गुस्सा आता है, ये कॉम्प्लेक्स आ जाए। कस्टमर डिमांड फास्ट डिलीवर, सब ऑर्डिनेटेड रिक्वायर शेड्यूल डिलीवरी। अब कस्टमर की डिमांड क्या है कि हमें जल्दी आए, लेकिन सब ऑर्डिनेटर ऐसा डिमांड का शेड्यूल बना रहे कि हम जिस दिन बोलेंगे उसी दिन गुड्स बाहर निकलेंगे। तो इससे जो कॉन्फ्लिक्स होता है इसे सप्लाई कॉन्फ्लिक्स या डिमांड कॉन्फ्लिक्स बोलेंगे। तो इसके ऊपर उसने नाम दिया हुआ है हेरचल कॉम्प्लेक्स, फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉम्प्लेक्स। ये तीन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ इमेजिनी होते हैं। मतलब इसमें देखेंगे फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर वेरी कॉमन। दे आर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी एक दूसरे के बीच में ये कहना कि मार्केटिंग कैसे की हुई है, वैसे प्रोडक्ट बना हुआ बनाने बोला हुआ है कि नहीं, देन प्रोडक्ट बना वैसे मार्केटिंग हुई कि नहीं, फिर भी सेल नहीं हो रहा है तो इसमें किसकी मिस्टेक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर रॉन्ग, सेल डिपार्टमेंट आर रॉन्ग, फाइनेंस डिपार्टमेंट आर रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग, ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दे मे बी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट में सीन जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताया, इनफॉर्मली कुछ भी बात करते एक दूसरे से, क्योंकि किसी डिपार्टमेंट या फॉर्मल ग्रुप का कोई भी बंदा रहेगा, एक टॉप लेवल का फ्रेंड रहेगा जो मिडिल लेवल में है से रहेगा, एंड दोनों में इनमें जो जुगाड़ जनरेट होते हैं उससे फिर फॉर्मर वर्क किया जाता है, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं। इट मीन्स कल तक जो ये डिसीजन नहीं था, सुबह 8 बजे से दूसरे दिन से डिसीजन चालू होता है, अचानक डिसीजन आते हैं, बिकॉज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल टू वे आर जनरेट होते हैं। यानी घर में कुछ अपने क्लोज फ्रेंड के साथ डिसाइड करना और सुबह से वो लागू करना, घर तुम्हारा था, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी नहीं रहती है, ये सोचना नहीं। देन द आउटकम ऑफ कॉम्प्लेक्स के बाद है कॉजेस एंड सोर्सेस ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या है कॉजेस, द फर्स्ट कॉज इज मार्जिनल,
मैनेजरियल एक्सपेक्टेशन, जो मैनेजर का एक्सपेक्टेशन होता है वो फर्स्ट कॉज है. इट इज अ जॉब एन एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेक्टेशन टू मैनेज है. किसी भी एम्प्लॉय का ये रहता है कि वो मैनेजर से मिले. But if those communication, their goals are employee, but communication are their goal, our manager should encourage his her employee ask a question about their goal and hold regular meeting and discount of goal and also how to best reach them. Then the lack of resources. Lack of necessary resources can be causes the conflict the amount employee and between the job complication and the right. Lack of trust, then 3 days of testings and personality clashes that remain in charge of conflicts के होते हैं. इसमें देखो personality clashes ये main point है. पर्सनालिटी क्लैशेस को मेन पॉइंट क्यों बोला हुआ है. लाइक वो मेल है, मैं फीमेल, सॉरी मैं मेल हूँ, कोई फीमेल है, और जो मेल काम कर सकते हैं किसी फीमेल के ऊपर अपॉर्चुनिटी दी जाए. अब टू मैनेजर इज देयर. अब बोला जाए कि मैनेजर मेल इज बेस्ट एज कम्पेयर टू फीमेल रखी गई, तो उससे हम क्या गाली गलौज करें, उससे हम क्या करें, इसने फीमेल क्यों रखा, ये फीमेल है, इससे हम क्या बात करें, ये क्या डिसीजन लेने की पावर रखती है, ये थिंक आती है. इज अ पर्सनैलिटी क्लैश. देन सेकंड पर्सनैलिटी क्लैश क्या होता है कि एक एमबीए होल्डर है, एक बीकॉम होल्डर है. बीकॉम होल्डर द वेल एजुकेटेड है, एज एमबीए होल्डर जस्ट थ्योरेटिकल पर्सन है. तो ये वेल एजुकेटेड है लेकिन कम सीखा हुआ है. इसको मेरी जगह क्यों रखा, मैं एमबीए होल्डर हूँ, मैं इसके नीचे काम क्यों करूँ, मुझे उससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट चाहिए. चाहे मैं थ्योरेटिकल रहा तो क्या हुआ, ये ऐसा थोड़ी होता है क्या, हम वेल एजुकेटेड है. ये जो थिंकिंग है, इट इज पर्सनैलिटी क्लैशेस. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज. एक एक के बारे में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सेट करना. ये इतना अच्छा है, ये इतना बुरा है, झगड़े लगाने के काम करता है, ये कान भरने के काम करता है. ये जो थिंग्स तैयार होते हैं, इट इज डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज, दूसरों के बारे में थिंक करना. और दिस थिंग इज इफेक्टेड ऑन योर बिजनेस. ओके. Then the next is conflict resolution style. And the conflict resolution style will occurs with the organization in 1970. केन थॉमस, उसने क्या बोला होता, 5 लेवल ऑफ स्टाइल है. अब कौन कौन से नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू. Is that the formal groups. Okay, the formality is done for the one word. सबका एक ही काम होता है, to teach them, to teach you. तुम्हें सिखाने के लिए बनाया हुआ है. Because the well teaching activity is done there at the university level. For that, these formal groups can be command under this following system. And this following system is occupied by this level of study. अब वो किसकी लेवल ऑफ स्टडी है, कैसी है, उसके हिसाब से उनको फॉलो किया जाता है. Okay, then task group. Also organize, determine the task group represent this the work together, the complete job task and project work, but not necessarily reporting to the same supervisor. For example, when the problem involvement in department arise, people from those department may appoint a secretary's problem. अब देखो, ये टास्क ग्रुप इज अ फॉर्मल एक्टिविटी फॉर द कंडक्टिंग ऑफ एनी पर्पस. कोई ऐसा काम हो जाए जो रॉन्ग हो गया है, जो वो फॉर्मल ग्रुप को हैंडल करना है. लाइक अगर तुम्हारे ग्रुप के एक डिपार्टमेंट ग्रुप है, उसके अंदर किसी स्टाफ को रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो जाए, तो उसके लिए एक टास्क फोर्स तैयार किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है. दिस कमेटी हैंडलिंग बाय 1% एंड दिस कमेटी हैंडल बाय दिस. एज कंपेयर टू एज योर लेवल स्टडी, एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया तुम्हें, एक ग्रुप प्रोजेक्ट. तो ग्रुप प्रोजेक्ट का कंक्लूड निकालना, द फाइंड ऑफ दिस कंक्लूजन इज योर टास्क. और फॉर दिस टास्क कौन क्या क्या करेगा, द मेकिंग द प्लानिंग एंड दिस प्लानिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर ग्रुप members. Okay, then informational group, sorry informal group. अब informal is not a formal, जैसे ही बनाया जाता है. Informal group are illusions that the neither formal structure or not organized. Determine this group are natural formality work for environment that appearing in the response of need social contacts. A few employees from different department who are regularly to launch together example of group informal. Few employee, कोई भी 4 लोग या फिर कोई भी कहीं से भी आए हुए, उनको पता नहीं रहता कि टास्क क्या हो सकता है, या टास्क के लिए वो नॉट डिटरमाइंड पर्सन होते हैं. जैसे यू आर बीएमएस फॉर मैनेजमेंट, बीकॉम फॉर अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस,
फॉर फ्रॉम आर्ट्स फॉर लिटरेसी, ये डिफाइंडेबल पर्सन ग्रुप बन रहा है कि आर्ट्स से आए तो उनको लिटरेसी के लिए डालो, साइंस से आए तो उनको रिसर्च एक्टिविटी में डालो, मैनेजमेंट बीएमएस से आया, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से आए, द स्टडीज कम फॉर द मैनेजमेंट, देन द पर्सन इज बेस्ट फॉर द मैनेजमेंट ग्रुप। हियर द एक्टिविटी आर डन। ये फॉर्मल में होता है। इनफॉर्मल में कोई भी कहीं से भी और फ्रेंड कोई भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीएमएस की स्टूडेंट का बीएमएस का ही फ्रेंड होना चाहिए, उससे कुछ नहीं है, सिर्फ नोट्स मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला। फ्रेंड्स की एक्टिविटी नहीं जनरेट होंगी। फ्रेंड्स ग्रुप ऐसा नहीं होता है कि तुम टास्क हो, ये थिंक रखने वाले भी रॉन्ग होते हैं कि फ्रेंड्स ग्रुप की लिमिट तुम्हारे लेवल तक होनी चाहिए। नो आइडिया, तुम किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हो, यू आर कैपेबल फॉर दैट, बट तुम्हें उसको समझना है, तुम्हें उसको समझना है, वो तुम्हें समझता है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इट्स अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एंड दिस इज मेकिंग द इनफॉर्मल ग्रुप। ओके, ऐसा नहीं होता है। देन द इंटरनल, यहाँ तो फिर अब इसमें टू पार्ट्स है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ग्रुप। अब इंटरेस्ट द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब इसके अंदर उसने वही एक्सप्लेन किया है, तो हाउ मच सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप। द इंटरेस्ट ग्रुप यूजुअली द कंटिन्यू ओवर टाइम मस्ट last longer than general information group. Member of interest group may or may not be part of the same organization, department, but they are bonds together by some of common interest. वो एक ही जगह से होंगे ऐसा नहीं है, एक कॉमन बॉन्डिंग होती है। जैसे कि कुछ एक सिंपल एग्जांपल, स्टाफ टीचिंग, स्टाफ बॉन्डिंग या स्टूडेंट स्टाफ बॉन्डिंग। तो इस बॉन्डिंग की वजह से वो स्टूडेंट टुवर्ड्स टू दिस स्टाफ, एंड अगर उसे किसी से स्टाफ के किसी भी मेंबर से बात करनी होगी, सबसे पहले जिससे बॉन्डिंग है उसके पास जाता है, क्लेरिफाई करता है कि जिस एक्स वाई जेड बंदे से उसे मिलना है, इट इज ओके टू टॉक एंड ऑल नॉट। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ एग्जाम्पल्स बताया हुआ है। एम्प्लॉय हु गेट टुगेदर टू हैव देयर द वोकेशन शेड्यूल अटेंडेड। अब कोई एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट का ओकेशन के टाइम पे या किसी फेस्टिवल के टाइम पे एक आता है, द मेकिंग फेस्टिवल ओकेशन या फॉर्मुलेशन ऑफ दिस ग्रुप फॉर द मेंबर इन द वर्क। देन अपने कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज होते हैं, तो उस एक्टिविटी में स्टूडेंट एंड स्टाफ को अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रुप बनाया जाता है। टेक्नो इवेंट्स कॉल इट्स कॉल्ड टेक्नो इवेंट। उसमें सब स्टूडेंट्स और इसको टास्क दिया जाता है, इस टास्क के अंदर हम लोग एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था, इज द बेस्ट एक्टिविटीज इन कॉलेज, मे बी इन साल भी होगा। देन friendship group are often development because the individual member have one or more common characteristic। ये किससे बनता है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से। अब ये बॉन्डिंग में मे बी अ कैलकुलेशन ऑफ, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ योर नॉलेज। कोई नॉलेज की बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे कोई सीए कर रहा है तो उसकी बॉन्डिंग, कोई सीएस कर रहा है तो उसकी बॉन्डिंग। अभी जैसे तुम्हारे इसमें कॉमन आइडिया, ये तुम बीएमएस कर रहे हो, अदर स्टूडेंट्स विद यू आर इन 50 or 60 स्टूडेंट इन योर क्लास, but they are doing starter accounting study, then there also are the group members. You are a friend circle, because their study pattern are same, knowledge are same, the behavior of thinking are same. तुम्हें त्याच्या बाहेर बघणार नाही है। ओके, देन द रीजन्स पीपल जॉइनिंग द ग्रुप। क्या रीजन्स होते हैं कि पीपल जॉइनिंग द ग्रुप? There are the various reasons. The first is proximity, interaction, and influence. One of the most common reason why the people join group is because of the work near each other. क्या बोला हुआ है कि काम जो होते हैं वो सबके करीबी होते हैं, ग्रुप में सिमिलर एक्टिविटी की वजह से। ग्रुप बनने की रीजन क्या बताया हुआ है, द फ्रेंडशिप ग्रुप आर, देखो यहाँ बोला हुआ है, मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सब में कॉमन यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक। अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो काम भी उनका कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सिमिलर होगा। वही सेंटेंस उसने यहाँ यूज किया हुआ है। वन ऑफ द कॉमन रीजन where people join group because of the work hard each other. Informal groups seem so the among those who are not close proximity. वो close proximity यानी similar work के लिए नहीं होते, just hi hello के लिए होते हैं। When people have the frequent interaction or contact with one another, there are the likelihood that they will be form of groups. Finally, it behavior of one individual influence that other the likely form a group. Then security, proxy, probably probably the stronger reason joining that the group
in the needs to security. Okay, by joining a group we can reduce the insecurity, we feel the stronger. एकट्या एकापेक्षा दोन किंवा एक से दो भले, क्यों बोला जाता है? बिकॉज द ग्रुप ऍक्टिव्हिटी इज दॅट. आणि जेव्हा एक एक ग्रुपचा बल असतो हा एकट्यापेक्षा मोठा असतो आणि तो काहीतरी मोठा करू शकतोय, या थिंकने आपण ग्रुप ऍक्टिव्हिटीची स्टडी करतो. ओके, then we derive the resources from the integrate with the other and being part of group. This is the often explanation with apparel union. If management create an environment with the employees for insecure, they likely turn unionization in order to reduce their feeling insecurity. इन शॉर्ट जब मैंने ये स्टार्ट किया था, इससे पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया कि हर जगह ग्रुप होते हैं, ग्रुप एक्टिविटी आर दर. जब ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप होता है और उसका हेड उस ग्रुप को कभी भी यूनिटी में लाने की कोशिश नहीं करता. या देन सिक्योरिटी. अब सिक्योरिटी के पॉइंट में उसने क्या एक्सप्लेन किया, वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर. सिक्योरिटी इज डिपेंडिंग ऑन कि टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रहती है. हेड को ये सिक्योरिटी रहती है कि मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं उनमें अगर यूनिटी हो गई तो वो मेरे खिलाफ कोई एक्शनल वर्क कर सकते हैं एंड दिस इज इफेक्टिंग ऑन मी एंड माय प्लेस ऑफ वर्क. और मेरी जगह जा सकती है, मेरी जगह कुछ भी हो सकता है. एंड सेकेंड इज कि जो जूनियर होते हैं वो यूनियन जनरेट करते कि अगर अगर हम यूनिटी में नहीं रहे, हमने अगर यूनिटी में वर्क नहीं किया तो हमारे खिलाफ ये जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप जनरेट होगा कि हमारा हेड है वो हमें झगड़े लगाएगा, मेरे बारे में मेरे कलीग्स को कुछ बोलेगा, मेरे कलीग्स के बारे में मुझे कुछ बोलेगा और हम दोनों में झगड़े लगाएगा. और उससे बचने के लिए हम यूनिटी एक जनरेट करते हैं. दिस यूनिटी इज ऑल्सो अ ग्रुप. उसके बारे में बोला हुआ है, जब देखो उसने बोला हुआ है प्रोबेबली the strong reason is joining a group, it is need to security. हम किससे बचते हैं? सिक्योर, खुद को सिक्योर करने के लिए. by joining a group we can be reduced our insecurity with feeling the strong new the expensive experience. No employee like the strong law. We drive the resource we derive the resources from the interaction with other being part of group. This often explains the power of union. If management create an environment in which employees feel insecure, अगर एम्प्लॉयज कोई भी तुम्हारे अंडर जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारा एक ग्रुप है कॉलेज ग्रुप, अगर हमें ऐसा लगा कि स्टाफ को कि वी आर अनसिक्योर फ्रॉम माय हेड, लाइक हमारे अपने जो हेड है भोसले सर एंड ऑल, वी आर फील द वी आर मेक वन ग्रुप, वी आर मेक द वन ग्रुप. कौन सा ग्रुप बनेगा? अनसिक्योरेसी के लिए जो स्टाफ अनसिक्योर है उनका अलग ग्रुप बनेगा, जो सिक्योर फील करते उनका अलग ग्रुप बनेगा. ये एक एम्प्लॉयमेंटशिप जनरेट होती है. एंड दिस and that they are likely to turn to unionization in order to reduce their feeling in insecurity. किसके लिए बनता है? कि फीलिंग शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि हमारे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, हमारे साथ ऐसे बिहेव हो रहा है, ऑन दिस बिहेवियर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एंड दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट टू रिड्यूस योर एचओडी. और वो मूवमेंट किसके लिए होता है? कि हम वहां पे हम यूनियन जनरेट करते हैं, एम्प्लॉय यूनियन में जनरेटशिप आर जनरेटेड और वो फिर स्ट्राइक्स एंड ऑल जनरेट होके वर्क आर डन देयर. देन स्टीम. The steam, an individual can be increased his self-esteem through the group membership. One may begin the steam becoming the member of higher status group associate with the higher status people. स्ट्रीम में क्या दिखाया हुआ है? उसने सिंपल स्ट्रीम दिखाया हुआ है कि तुम किस स्ट्रीम से आते हो, किस ग्रुप को सिलेक्ट कर दो, उससे तुम्हारी स्ट्रीम सिलेक्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ उसने साइकोलॉजी की इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है कि तुम स्टूडेंट हो तो सिर्फ तुम्हारी स्ट्रीम स्टूडेंट तक नहीं होती है. एज पर नॉलेज तुम्हें जो बंदा चाहिए तुम उससे उसकी स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो, उसके बिहेवियर या लाइक बिहेवियर के हिसाब से तुम बिहेव करो एंड उससे अपनी ग्रुप एक्टिविटी में ले लो.
फॉर एग्जाम्पल सिंपल, लास्ट ईयर भोसले सर ने काम किया था ये, वी आर जनरेटिंग द स्टूडेंट एंड स्टाफ ग्रुप, जो टेक्नो इवेंट में यूज हुआ था, तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग ऑफ द स्टाफ एंड स्टूडेंट आर बेस्ट बिकॉज दिस टीम इज देयर, बच्चों की उनकी जो नॉलेज एक्टिविटी एंड द स्टाफ की नॉलेज एक्टिविटी को मर्ज करके उसको बनाया गया था, एंड द मर्जिंग आर बेस्ट एंड द एक्टिविटी आर बेस्ट. Okay, then the power, the member of guru power are the member of leads two way. The first that is the same the such, united we stand to die, divided we fall. देखो सिंपल बोला हुआ है, यूनिटी में रहेंगे तो सब खड़े रहेंगे, अगर उनको किसी ने अलग किया तो वो टूट के बिखर जाते हैं. एंड मैंने वही बताया कि ग्रुप एक्टिविटी में वही होता है कि अगर एम्प्लॉय ग्रुप हो गया तो एचओडी उसको तोड़ने की कोशिश करता है. There is the strength in member. Secondly, leadership inform group. The NFL inform the power as group member, even if do not enjoy a formal position, although the organizational work. Hmm? Then the stages of development. Stages of development. क्या development? Group development. Group development group goes to the five distinct stage, forming the storming, gnawing, performing, and adjoining. Okay, then it is the forming. It is a characteristic by the great deal uncertainty about groups proper purpose of structure and leadership during the stages of members get acquainted with one another. They are 10B uncertainty in action. पहला क्या ग्रुप है? फॉर्मिंग ग्रुप है. इसमें क्या किया जाता है? फॉर्म ग्रुप फॉर्म किया जाता है. अब ग्रुप फॉर्म करेगा जो ग्रुप का हेड होता है. अब जो ग्रुप का हेड होता है उसकी टेंडेंसी, उसकी सर्टेंसी, उसके ड्यूरिंग ऑफ स्टेज क्या होंगे, उसके हिसाब से अपने ग्रुप में कौन होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी क्या होनी. दिस आर द फॉर्मिंग इज दैट. ओके, दैट द सेकंड स्टेज इज स्ट्रमिंग. स्ट्रमिंग में क्या होता है? दिस स्टेज द कैरेक्टरिस्टिक्स इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. अब इसमें इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट यानी दो अलग ग्रुप एक जगह मर्ज हो रहे तो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनकी थिंकिंग पावर, अपनी थिंकिंग पावर, उनका थिंकिंग बिहेवियर, अपना थिंकिंग बिहेवियर, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को परफेक्ट किया जाता है. मेंबर आफ्टर द रेस्टिंग द कंट्रोल बाय ग्रुप लीडर्स. अब ये कैसे होगा? तो ग्रुप लीडर्स की स्टडी की जाती है कि उस ग्रुप लीडर की बिहेवियर क्या है, इस ग्रुप लीडर की बिहेवियर क्या है, अदर ग्रुप लीडर्स की क्या है. बिकॉज द ग्रुप्स आर वन कैरेक्टरिस्टिक, तो लीडर का कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वही ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसलिए वो सिर्फ लीडर को स्टडी करते हैं. देन द सेकंड इज नेक्स्ट इज नॉर्मिंग. नॉर्मिंग दिस स्टेज द कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड चूजीनेस. हम जो सिलेक्ट करते हैं उससे कैरेक्टराइज किया जाता है अपने ग्रुप को कि हम जिसको सिलेक्ट करते हैं जैसा हो उसका वैसा दोस्त, दोनों का बिहेवियर सेम. देर आर द स्टेजेस आर सेंसिटिव टू ग्रुप आइडेंटिफाई. और ये क्या होती है, कौन सी स्टेज होती है ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की? तो सिंपल सेंसिटिव स्टेज. ओके, अ फीलिंग a feeling of terms, spelling the spaces between the member, believing that they are not found there the proper role. The group choosenness is the main feature of the stage. Okay, the performing the structure at the point of full function and accepting the groups devotes the energy to getting the work done. Hmm? परफॉर्म में क्या बताया हुआ है? अब उनकी एनर्जी और वर्क डन को परफॉर्म किया जाता है बाय दिस ग्रुप एक्टिविटी. ओके, एंड दिस एक्टिविटी कंडक्टिंग बाय द सेम कैरेक्टरिस्टिक. वो किसकी वजह से हो रहा है? सेम कैरेक्टरिस्टिक के. सब क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल बीएमएस स्टाफ ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टीच यू. उनका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, टीच यू. इस वजह से वो सब एक जगह हुए ताकि तुम्हें अच्छे से सिखा सके. ऑन बेसिस ऑफ बीएमएस क्यों लिखा हुआ है? बीएमएस के बारे में सिखा सके, मैनेजमेंट के बारे में लिखा सके. तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा टू नो द मैनेजमेंट, नो द टू नो द मैनेजमेंट, टू नो द टीचिंग स्टाफ, टू नो द टीचिंग एक्टिविटी. ये कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम सब एक है वहां में. ओके, then adjourning the form of performing work group performing at the list of stages in there the development. However, the temporary committee, task force, and similar group that have been the limited task performed, there is an adjourning stage. In this stage, the group
prepare for its disbandment, high task performing not longer group top priority. Instead, the attention is direction towards the wrapping up activities. किसके ऊपर होती है wrapping up से ने वो क्या कर रहे हैं एडजॉर्निंग हो रही है एंड जॉर्निंग के ऊपर जो एडजस्टमेंट हो रही है कि लोअर एंड हायर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट्स को जनरेट करते हैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ओके देन द वर्क ग्रुप बिहेवियर द वर्क ग्रुप बिहेवियर यानी ग्रुप बिहेवियर का काम द वर्क ग्रुप आर द नॉट are organized modes. They are having the behavior modes towards to be the able to the understanding this model or the needs to understand that the work are substantially enables in large systems or the organization work groups as not existing in isolation. They are part of large organization, for example production unit, Hindustan Unilevers Limited may be the fair situation for the headquarters but in the live within the rule regulation policy director from the headquarters. So every work group influenced by conditions inflow on it. This is the condition where the flow the some concept we can be understood the factor of affecting the group behavior determine the group behavior. इन शॉर्ट क्या बताने जा रहा है कि ग्रुप के बिहेवियर की वजह से जो हमें होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम आज स्टडी करेंगे. अब कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्रुप में किसी को कुछ नॉनसेंस स्मोकिंग वगैरह का एक को होता है एक की वजह से सबको आदत लगती है स्मोकिंग ड्रंकिंग इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट यानी एक बैड बिहेवियर और बैड बिहेवियर का कारण बनता है बोलते हैं ना एक गंदा प्याज पूरे प्याज के टुकड़े को खराब करता है इसी तरह होता है इट्स अ ग्रुप एग्जांपल ऑफ conflicts and they understand that the work groups and this subsumes the imbalancing larging system और जिसकी वजह से एम्बेड हो रहा है एम्बैलेंसिंग हो रहा है और उसको हम स्टडी करते हैं एंड रिकवर इट ओके. अब उनके जो मेन क्लॉजेस है कंसेप्ट है उस कंसेप्ट अंडरस्टूड करना है द फैक्टर एक्सटर्नल इंटरनल अफेक्टिंग ऑन द वर्क ग्रुप बिहेवियर. द फर्स्ट इज ओवरऑल स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर क्या बोला हुआ है द ओवरऑल स्ट्रेटजी and the goals are always are decided by the top management. किसने करना चाहिए top management of the work group which is turn determine the resources that the organization of top management is willing to allocate it than the performing this task. So due to the recessions in the market and downfall of the product of organization, the company decide to withdraw the product from the market, but sometime inside that the employees found that the particular department will place in other department. देखो एक शॉर्ट एग्जांपल बताता हूँ जो यहीं पे बताया हुआ एक सेलफोन आता है तो सेलफोन की जो एक फीचर्स आता है वो फीचर्स को बनाने का एक ग्रुप होता है. अगर वो सेलफोन किसी कंपनी ने बता दिया कि फ्रॉम नेक्स्ट मंथ दिस मोबाइल्स आर क्लोज फ्रॉम मोबाइल फोन आर क्लोज फ्रॉम द मार्केट तो वो ग्रुप रहेगा नहीं रहेगा. तो एम्प्लॉय के ऊपर इफेक्ट होता है और क्या इफेक्ट होता है कि उस एम्प्लॉय को फिर अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है. अगर अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा तो यहाँ जो ग्रुप बॉन्डिंग हुई थी वो अदर डिपार्टमेंट में वन डे में होंगी वन वीक में होंगी वन मंथ में होंगी नहीं होंगी. इट इज इफेक्टेड ऑन योर वर्क इट इज इफेक्टेड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन. It is not easy and not good for your organization behavior. Then authority to structure. अब इस ग्रुप को स्ट्रक्चर करने की अथॉरिटी किसके पास दी जाए. All organization have to authority struck that the different hierarchy classify position of each employee group. Okay. Mentor to how report who खुद को कैसे रिपोर्ट करें who make the decision and what decision individual who group are employed to make. This structure typically determine where the given work group is placed in the organization hierarchy, the formal leads on the group and relationship between group. देखो यहाँ उसने क्या बोला हुआ है कि अथॉरिटी दी खुद को अथॉरिटी दो कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है कितने लिमिट तक करना है और किससे करना है.
इससे क्या होने वाला है कि तुम्हें अगर उस डिपार्टमेंट से अलग किया गया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया, तो वो जो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक है कि तुम्हें किससे कितना बोलना है, क्यों बोलना है, क्या करना है और कब करना है, इसकी पॉलिसी तुम हर जगह यूज कर सकते हो और इजीली एनी वन ग्रुप में तुम टाइप हो सकते हो। दिस टाइप के लिए दे होना जरूरी है। हुँ? उसने बोला सो व्हाइल अ ग्रुप माइट बी द लीड समवन who emerges employing the will within the group, the following distinct leads by the authority to let other in the group do not have, जो कि अथॉरिटी तुम्हें ग्रुप नहीं देने वाली है लेकिन तुम्हें खुद से वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ओके, देन फॉर्मल रेगुलेशंस, खुद के फॉर्मल रेगुलेशंस होनी चाहिए जिसको तुम्हें फॉलो करना है। Every organization has the set of rules, procedure, policy, job description, etc. McDonald's has standard operation procedure for the taking order, cooking hamburgers, and the making French fries. The discretion of work group member to cite independent stand of the behavior of survival limit. अब उसने पहले ही बोला हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के सब रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करो हर जगह, किसी भी डिपार्टमेंट में। इसी से योर बिहेवियर आर बेस्ट एंड बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने मैकडोनल्ड्स का दिया कि मैकडोनल्ड्स की कितनी तो ब्रांच है लेकिन सब जगह सम बातें सेम होती है। जैसे सम पार्ट्स ऑफ कुकिंग में हैमबर्गर्स कौन बनाएगा, फ्रेंच फ्राइज कौन बनाएगा, बर्गर की क्या कुकीज कौन बनाएगा, बन कौन ब्रेकअप्स करेगा, ये डिसाइड होता है। अगर तुम्हें शिफ्ट किया गया और वही अगर तुम्हारी एक्टिविटी वही है तो तुम्हें वहां पे भी वही काम दिया जाएगा। ओके, देन रिसोर्सेस, कौन कौन से रिसोर्सेस इफेक्टेड ऑन योर वर्क। Some organizations are large and profitable within the abundance of resources. There, the employees will have the modern, high quality tools and equipment to their job. Other, the organization aren't the forfeiture where the organization have the limited resources so that their work groups and what are the group actually accomplishes. देखो यार सिंपल उसने बात बोला हुआ है कि रिसोर्सेस जो तुम्हें काम करने के लिए मिलने वाली है ये भी एम्प्लॉय वर्क पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सम जगह पे कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक को कम यूज किया जाता है तो वहाँ बड़े ग्रुप रहेंगे। एज टू आईओटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम आईटी को जो ज्यादा एक्सेप्ट करता है वह वर्कलोड कम होता है। मॉडर्न बैंक्स एंड बिफोर बैंक्स की स्टडी करेंगे तो टुडेज बैंक्स में जो वर्क करने वाले पब्लिक है, द लिमिट ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस एज कम्पेयर टू द बिफोर। जब तुम बचपन बहुत छोटे थे, बहुत यानी एकदम बहुत, यू आर इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, उस वक्त अगर बैंक में कभी पेरेंट्स के साथ विजिट किए होंगे तो कितनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे आर, जितने लोग आते थे उससे ज्यादा वो बैंक में काम करने वाले दिखते थे, बिकॉज द आईटी सेक्टर आर लेस दैट टाइम। टुडे आईटी सेक्टर इज हाई, और आईटी सेक्टर हाई हुआ है तो वो वर्क भी वैसा ही कर रहा है। उस वजह से वो एक कंप्यूटर या आईटी सेक्टर 5 लोगों का काम कर रहा है तो हम 1:5 के रेशो में डाइवर्ट हो रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस इवेल्यूशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, ग्रुप को कैसे करना चाहिए, परफॉर्मर इवेल्यूशन और रिवॉर्ड देना चाहिए। उनकी गलतियों को काउंट करके उनको बार बार टॉर्चर नहीं करना चाहिए। Another, the organization variability that the affect all employees is the perform evaluation and reward system. What is the design organization reward system while the achieving the objective? Since work group are part of the large organization system group member, behavior will influence by how the organization. Hello. Okay. Then the next is the performing evaluation. Then the organizational culture. Organizational culture is a consists the creation the standard certain and creating the standards of the accepting of the unacceptable behavior after the few months.
एम्प्लॉय द कम टू द नो दे आर द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दे आर द, देखो इस पॉइंट पे मैं इतना ही एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ उसने बोला हुआ है द एक्सेप्टेबल द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। कौन सा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है? कि देखो सबसे बड़ा दो ग्रुप बनते हैं, एक विलेजेस और नॉन विलेजेस। तो ये ग्रुप नहीं बनना चाहिए जिसको अभी उसने एक्सेप्ट किया इस बात को। अगर तुम कितना भी यहाँ मास्टरेट करो, वेल इंग्लिश स्पीकिंग एंड स्पोकन रहो, इफ यू आर विजिटेड इन विलेज, सॉरी विलेज एरिया, तो तुम्हें ज्यादा वेटेज दिया जाता है एज कम्पेयर टू यू आर विजिटेड इन मेट्रो सिटी। तो पहले ही तुमसे कोई किसी ग्रुप में ऐड नहीं करेगा जब तक कि उनको एक्सेप्ट नहीं हो कि ही अल्सो या शी अल्सो बिहेव लाइक अस, ये भी हमारी तरह है, तब तक वो तुम्हें विलेजर्स काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें वो एडवर्टाइज आई होंगी, वो पिज्जा की, उसको पिज्जा का कैलकुलेट करता है, पिज्जा को पिज्जा, यू आर ईटिंग पिज्जा, कोई तो एक एडवर्टाइज है, तो उसको वैसे बिहेव किया जाता है कि यू आर अ विलेजर्स, यू नॉट स्पीकिंग स्पोकन इन इंग्लिश वेल, यू नॉट स्पीकिंग, इट्स नॉट पिज्जा इट्स पिज्जा, ऐसे उसको बिहेव किया जाता है। ये बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल में इफेक्ट करता है, इसलिए उसको आज से लिया गया है। फाइंड आउट द व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर विल बी एडमायर, किसको एडमायर किया जा रहा है, किसको पॉइंट किया जा रहा है, वो फाइंड आउट किया जाता है। दे नो द थिंग लाइक हाउ टू ड्रेस फॉर वर्क whatever or not रूल्स आर रेगुलरली इन्फॉर्म। उसके लिए अभी हम लोगों ने ड्रेसिंग बिहेवियर एंड ऑल के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, क्या ड्रेस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है एंड दे आर डन देयर। एंड द लास्ट पॉइंट इज फिजिकल वर्क सेटिंग। Physical work setting is including the size of placement, employee workplace, arrangement and equipment, illustration level, and etc. They are the work settle in create opportunity for the behavior interaction among the work group members. Say if the opportunity for the behavior is interaction among the group, say that the superior in sittings bank cabin in the workers under himself open spacing and partnerships, okay, फर्दर द फॉरिंग हिम। इसमें क्या होता है, तो फिजिकल वर्क सेटिंग किया जाता है कि जितना हार्ड वर्क है वो किसको सेट किया जाए, किसके लेवल किया जाता है, इंक्लूडिंग द साइज ऑफ प्लेसमेंट, किस किस को प्लेस किया कौन से लेवल पे, उस लेवल के हिसाब से किया जाता है। फॉर एग्जांपल एचओडी के अंडर, देन एचओडी के अंडर जो काम करने वाले उनके अंडर कितना एचओडी को डिसाइड होता है कि वो कितना काम किसको बांटे। एंड देन द डिवाइडेड वर्क इज बेस्ड देन वो किससे कितना करवा के लेता है उसके अंडर वाला, ये लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड किया जाता है। ओके, टुडे वी आर स्टडी the 4 point of your group behavior. From next lecture we study the group member resources. Okay, all of you, thank you.